Hello everyone. I welcome you again on this platform where we learn science with fun. I am Pragya, your science mentor at Implex Edu. Today we will be discussing a very interesting topic from your class 8th syllabus, science syllabus. We are discussing chemical effects of electric current. In previous classes, we have discussed what are good conductors, what are bad conductors, can liquids conduct electricity? And if so, what we call them? And what is the difference between the solids and the liquid conduction of electricity? We have learned that in liquids, ions will help in the conduction of electricity. This is we have learned so far. Now, today we will be discussing a very important topic, which is electrolytic cells. Today, we will be discussing about electrolytic cell. We have discussed what is electrolytes. Electrolytes are those liquid conducting solutions. Today, we will be discussing about electrolytic cells, right? So, in these electrolytic cells, we have electrodes. We have what? Electrodes. What are these electrodes? We will discuss about that. So, electrodes are solid electrical conductor. They are solid electrical conductor, right? Now, what will happen via conductor? Electric current, electric current will enter or leave like a dry cell. Like in this, they are solid electric current, electrical conductor, where electric current will enter or will leave, right? It will enter or it will leave, right? This is about electrodes. Now, what are they made up of? They are made up of mostly carbon or any metal. Mostly they are made up of carbon or any metal. Now, we have different types of electrodes. We have different types of electrodes, like we have cathode, we have anode, right? What is cathode? When the electrode connected to the negative terminal of the battery. उसके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. वो किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा. दैट इज अ कैथोड. And electric electrode is attached, when electrode is attached to the positive terminal, when it is attached to the positive terminal of the battery, then that is known as anode, right? जब वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच है, दैट मीन्स वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा. तब क्या है? वो एनोड है. और जब वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, दैट इज कैथोड, right? Now, what will happen in electrolytic cells? In electrolytic cells, two electrodes will be kept in conducting liquid in a vessel. This is a vessel. We have conducting liquid, right? We have conducting liquid, and we will kept two electrodes in this conducting liquid, right? What is happening? What is the structure of electrolytic cells? We will keep two electrodes in conducting liquid, right? In conducting liquid in a vessel, right? We will keep two electrodes in conducting liquid in a vessel. This is known as electrolytic cell. Now, electrolytes are what? Sometimes electrolytes are not as good conductor of electricity as metals. राइट. मेटल्स के जितना वो गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइट. तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल काफी नहीं होगा, राइट? टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ लिक्विड वी मेक अ सेटअप ऑफ बैटरी, राइट? सो व्हाट वी विल डू दिस सेटअप. ठीक है. एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज. ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड. ठीक है. इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे. ठीक है.
ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा और करंट का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, ये कैथोड और ये क्या है, ये है कंडक्टिंग लिक्विड। ये है कंडक्टिंग लिक्विड, राइट, दिस इज द कंडक्टिंग लिक्विड। अब हम कंडक्टिविटी की लिक्विड्स की कंडक्टिविटी कैसे टेस्ट करेंगे, राइट, हम सॉल्यूशन को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स यहाँ होंगे, हम उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डालेंगे, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर उस बैटरी से क्या करेंगे, उस बैटरी से बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये बल्ब जल रहा है तो ये कंडक्टिंग लिक्विड है, नहीं जल रहा है तो ये कंडक्टिंग लिक्विड नहीं है। ठीक है, अब जो ये ग्लोइंग है बल्ब की, ये तीन तीन तरीके की होगी, राइट, या तो ब्राइट होगी, या लेस ब्राइट होगी, या डिम होगी। ठीक है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो लिक्विड है वो कितना अच्छा कंडक्टर है, राइट। अगर लिक्विड गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है, तो जो ग्लोइंग बल्ब है, जो ग्लोइंग बल्ब है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो गुड कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, एकदम अच्छा ब्राइट ग्लो करेगा, राइट। अगर वीक कंडक्टर है तो जो बल्ब है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा, राइट, बल्ब जो है वो डिम हो जाएगा अगर वो बैड कंडक्टर, वीक कंडक्टर है, नॉट बैड, वीक कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कि लेमन जूस में, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेमन जूस में क्या प्रॉब्लम, क्या हो जाता है कि यहाँ पे आयंस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये इतना अच्छा कंडक्टिंग लिक्विड नहीं है। ठीक है, और जो बहुत ही वीक कंडक्टर्स हैं तब तो बल्ब, मतलब वो इंसुलेटर ही है, तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तब बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, राइट। तो ये क्या क्या है हमने पढ़ा, टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, और सॉरी वीक कंडक्टर्स, और या फिर हम कहेंगे कि बैड कंडक्टर विच आर एन इंसुलेटर। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अब क्या होगा, अब हम ये डिटेक्ट कैसे करेंगे कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है वाया लिक्विड। ठीक है, तो जो करंट है जो फ्लो कर रहा है वाया लिक्विड, उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, वाया स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, वाया स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी थ्रू द बल्ब, तो हीटिंग इफेक्ट से उस इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब ग्लो होगा। क्यों ग्लो होगा, क्योंकि बल्ब में है फिलामेंट, बल्ब में है फिलामेंट, वो जब हीट अप होगा तो वो ग्लो करेगा। ठीक है, वो हीट होने पे हाई टेम्परेचर पे वो ग्लो करता है, तो वो क्या करता है, व्हाइट हो जाता है, ग्लो करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर करंट जो है जो सर्किट से मूव कर रहा है, अगर वो काफी वीक है तो उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, राइट, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो वो बल्ब फिलामेंट सफिशिएंटली हीट ही नहीं करेगा, तो वो ग्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रिसिटी हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रिसिटी हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं वाया एलईडी, राइट, जो होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, और या फिर हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ कंपास, यूजिंग अ कंपास भी हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। कंपास क्या, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास क्यों, जब इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो करती है, राइट, जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो करती है तो ये जो वायर है इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, ये वायर क्या है, एक मैग्नेट के जैसा काम करता है। तो मैग्नेट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक कंपस जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर यहाँ करंट फ्लो होगा तो ये एक वायर जो है एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, राइट। एलईडी को क्यों हम यूज करेंगे वीक इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि एलईडी जो है वो वीक करंट में भी ग्लो करती है। एलईडी को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एलईडी जो है वो वीक करंट में भी ग्लो करती है,
राइट। तो जो दो वायर्स हैं एलईडी के उनको हम अटैच करेंगे, राइट। जो लंबा वाला है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें जब वो ग्लो करेगा तो वो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे करंट था। दूसरा भी हमने देखा कि हम मैग्नेटिक कंपास से भी पता कर सकते हैं कि करंट था कि नहीं था। कैसे? करंट फ्लो होगा तो ये वायर एक्ट्स एज अ मैग्नेट और उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इन दोनों चीजों से क्या पता चला कि हाँ ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमारे पास तीन केस, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर, राइट। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं इस डिस्टिल्ड वाटर में एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं या सॉल्ट डाल दूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। टैप वाटर जो है, टैप वाटर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर कंडक्ट क्यों कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, राइट। ड्रिंकिंग वाटर में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सी वाटर में भी सॉल्ट होता है, सी वाटर ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ सॉल्ट इन इट, तो वो भी कंडक्ट कर सकता है। और रेन वाटर में भी एसिड प्रेजेंट होता है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कंडक्ट कर सकता है, राइट। तो कितना वाटर हुआ, डिस्टिल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयंस। तो जहां भी आयंस बनेंगे वहीं वो कंडक्ट कर सकेगा। इसके पास कोई सॉल्ट नहीं है तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट है तो ये कंडक्ट कर लेगा, टैप वाटर में भी सॉल्ट है, ये कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी। सी वाटर में भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, ये कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर में एसिड आता है तो ये कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर में कुछ एसिड, बेस या सॉल्ट डाल दूं तो फिर ये भी कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्लियर? सो नाउ what you will do after this class, you will revise what we have learned so far, and tomorrow we will discuss another topics from this chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye. Have a good day.